Let's thankfully sit in the presence of God and listen the voice of God. आइए हम धन्यवादी रूपी के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें और बैठकर हम परमेश्वर के वचन से मनन करें. The topic we were looking to the previous 2 days was come to the knowledge of truth. और पिछले 2 दिन हम कि सत्य के ज्ञान को के समझने के लिए हम आने के लिए हम देख रहे थे. And the portion that we looked to was 1 Timothy chapter 2 and verse 4. पहला तिमोथी 2 उसका 4 में हम देख रहे थे. There we read God our Savior who wants all people to be saved and to come to the knowledge of truth. और जो परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है वो चाहता है हर एक इंसान उद्धार पाए और परमेश्वर के सत्य के ज्ञान को समझ लें. We shall continue with the same topic even today, the 3rd day of the series of meetings that we are holding. और ये 3 दिन की जो हमारी जो मीटिंग है उसमें इसी बात को इसी तथ्य को जानने की कोशिश करेंगे. I'm reminded of a story like this. और मेरे पास एक कहानी है. One of the church members came back to his home church after completing his theological studies. और एक चर्च के मेंबर अपने थियोलॉजी की स्टडी खत्म करके वो आए थे. And the elders of the church gave him opportunity to minister the word of God. और जो वहाँ के जो एल्डर थे उन्होंने उस विद्यार्थी को मदद किया कि वो कलीसिया में ये आराधना कर सके. Actually, I don't have two mic, but I have even my sound echoing here. So let me exit and join again one more time. Okay. भाई को 2 बारी आवाज सुनाई दे रहा है इसलिए वो एक्सिट करेंगे और दोबारा से जुड़ेंगे. പുള്ളിയുടെ ശബ്ദം പുള്ളി തന്നെ. Is my voice clear now? Yes, brother. But still, I have a problem. I don't have 2 sets. I have only 1 set, but still I have this problem because my voice is rebouncing in my own speaker. Okay. But we can hear you properly. You don't have any disturbance, but I got a message that it is disturbed. That's why I just Okay. let me check in my Bluetooth.
Can you hear me? Yeah. Can you hear me? Yes, brother. Can you hear me? Hello? Yes. Can you hear me? Hello? Yes, brother. Now Can you it's hear clear. me? Yes, brother. We can hear you. Oh. और जगदेव रिकॉर्डिंग बंद की थी कि चली जा रही? चल रही है। चल रही है। वो बंद करना फिर दोबारा चला लें। Okay, we'll continue. I don't know whether we can assign it to Satan or it's our own fault. I don't know, but still we'll continue. हम शुरू करेंगे। दुष्ट को पसंद नहीं है, इसलिए प्रभु के आश्रय में हम शुरू करेंगे। Well, I'm reminded of the story of an young preacher who came back to his home assembly after having completed his theological studies. एक प्रचारक अपने बाइबल स्टडी जो कॉलेज में किया, खत्म करने के बाद अपनी असेंबली में आया। And he was given opportunity to minister the word of God. और जो कलीसिया के एल्डरों ने उन्हें उसे मौका दिया कि परमेश्वर का वचन की सेवकाई करे। He delivered a wonderful sermon. उसने बहुत अच्छा प्रचार किया। And everybody was happy. और सारी कलीसिया के लोग बहुत खुश थे। Next week, he was given again opportunity to preach. अगले हफ्ते फिर उसको मौका मिला कि वो वचन की सेवकाई करे। He delivered the same sermon. और उसने वही जो संदेश है, वही संदेश को दोबारा से बताया। Few of them were upset why he was repeating the same message. और जब उससे पूछा गया क्यों तुम यही संदेश को आज इस संडे को भी दिया, Then they thought probably he did not remember the last message was the same message, so he delivered the same sermon. और उसने कहा कि मुझे याद नहीं कि वही संदेश है, होगा तो इसीलिए मैंने ये संदेश दिया। And the third Sunday came. और तीसरा इतवार आया। He was given opportunity. और उसको फिर एक मौका मिला प्रचार करने का। He delivered the same sermon. और उसने वही संदेश उस तीसरे इतवार को भी वहां सेवकाई की। After the meeting, elder came to him and asked him. और जो मीटिंग खत्म होने के बाद वहां के प्राचीन आके उनसे बात कर रहे थे। Brother, what happened? You delivered the same sermon all the 3 days. Don't you have any other message, any other sermon?
और उससे पूछा भी, क्या भाई आपने तीनों दिन एक ही जैसा संदेश दिया कि आपके पास और संदेश नहीं है देने के लिए? And he said, of course, I have a quite good number of sermons with me. और उसने कहा कि मेरे पास तो और भी अच्छे गिनती के संदेश है मेरे पास, But you have not done anything with my first message, then how can I go to my second message? और उन्होंने कहा कि आपने पहले संदेश के साथ कुछ नहीं किया तो मैं दूसरा संदेश कैसे दे सकता हूँ? I am repeating the same topic, और मैं वही टॉपिक को रिपीट कर रहा हूँ, but I am not repeating because you did not do anything with my previous classes. और जो मैं वही बात को रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि आपने उस टॉपिक्स को या उसी विषय को नहीं देखा। You've been very attentively listening, and I'm sure you are adopting, you are practicing what we learned through these 2 days. और मुझे आशा है कि आपने जो पहला दिन और दूसरा दिन बड़े ध्यान पूर्वक उस संदेश को सुना, और मैं आशा रखता हूं कि उस संदेश से आपने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ फैसले लेकर आगे बढ़े होंगे। Even today, as we sit in God's presence, may it be that the Lord would speak to our hearts and minister unto our spirit. और मैं आज यही आशा रखता हूं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में विराजमान हैं और परमेश्वर से सुने, ताकि परमेश्वर हमारे हृदयों में, हमारी आत्मा से प्रभु के वचन से बात करें। We were discussing as question answer sessions. और हम बातचीत कर रहे थे मसीही ताल्लुकात के बारे में। No, we were doing it as question answer session. और एक सवाल जवाब का एक सेशन चल रहा था। We have completed 3 questions in the past 2 classes. हमने पिछले 2 कक्षाओं में हमने 2 सवाल हमने पूछे थे। Initially, we saw what is truth. और हमने देखा 3 सवाल में क्या है, सच्चाई क्या है। Then we saw what is the importance of coming to the knowledge of truth. और फिर हमने देखा दूसरा कि सत्य के मार्ग पर जानने क्या महत्व क्या है। And yesterday we were looking to what does it mean to come to the knowledge of truth. और ये कल हमने देखा कि परमेश्वर का सत्य वचन के ज्ञान का मतलब क्या है। We saw that the more we know Christ and the word of God, the more we will be able to worship him, and our worship will be more sweeter. और हमने कल देखा कि जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन को समझेंगे, उतना ज्यादा हम प्रभु में परिपक्व होके परमेश्वर की आराधना में हम उतने ही संवेदनशील होकर आगे बढ़ेंगे। Also, we saw the more we know the word of God and the person of Jesus Christ, the more we will be conformed to the image of Christ. फिर हमने देखा कि परमेश्वर का वचन को ज्यादा से ज्यादा हम जब जाने और व्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु मसीह को हम ज्यादा से ज्यादा जानेंगे, तो हम प्रभु यीशु मसीह के जो इमेज है, यानी कि उसके जो रूप है, उसके रूप में भी हम वैसे ही बढ़ते जाएंगे। And also we saw the more we know Christ and the word of God, the more we will be able to accomplish his will in our life. और फिर हमने देखा जब जितना ज्यादा हम परमेश्वर के उस वचन और प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, उतना ही ज्यादा हम परमेश्वर की इच्छा को हम समझेंगे और अपने जीवन में उस इच्छा को करेंगे। Now we will go to the 4th question. आज हम चौथे सवाल में जाएंगे, प्रश्न में। What will happen if we do not come to the knowledge of truth? क्या होगा अगर हम परमेश्वर के उस सत्य के ज्ञान में नहीं आएंगे? First of all, we can see that if we do not come to the knowledge of truth, we will commit mistakes in our Christian life. अगर हम सत्य के ज्ञान में अगर हम नहीं जानकारी या उसे नहीं समझेंगे, तो जो ना समझने वाला व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत से गलतियां करेगा और बहुत से पाप करता जाएगा। Well, you may be thinking that what more mistakes can we commit, because we are already committing the maximum mistakes now.
और आप सोच रहे होंगे कि कौन सा हम गलती करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सी गलतियां हो चुकी हैं। Well, the Lord wants us to follow Him, and He wants us to be victorious in our Christian life. और परमेश्वर ये चाहता है, उनकी इच्छा ये है कि हम प्रभु का अनुसरण करें, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें और उसकी उस बातों को अपने जीवन में लागू करें। When we turn to Matthew's Gospel, chapter 22 and verse 29, 22 मत्ती रति उसका 22 का 29 आयत में हम देखते हैं, 22 अध्याय उसका 29 आयत। there we see Jesus answering like this: "You are mistaken, since you do not understand the scriptures nor the power of God." और यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते और इसी कारण भूल में पड़ गए हो। There also we can see both scripture and the power of God is mentioned. और आप देख सकते हैं इस आयत में परमेश्वर के वचन है और परमेश्वर के वचन के जरिए जो परमेश्वर का सामर्थ्य वहां प्रकट हो रहा है उसको हम देख सकते हैं। If we fail to understand the person of Christ, if we fail to understand the meaning of the word of God, we will commit mistakes in our life. अगर हम प्रभु यीशु मसीह के उस सामर्थ को ना जाने और प्रभु यीशु मसीह के उस वचन को नहीं जाने तो हम बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, हम बड़े-बड़े परेशानियों में फंस जाते हैं। If we fail in understanding Lord Jesus Christ, if we fail in knowing the word of God, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को समझने में पराजय हो जाते हैं और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन को समझने के लिए भी पराजय हो जाते हैं, तो we will not be able to offer an acceptable, a pleasing worship before God. हम प्रभु यीशु परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य प्रसन्न योग्य आराधना नहीं चढ़ा पाएंगे। If we fail in knowing the Lord, in understanding the word of God, अगर आप प्रभु को समझने के लिए और परमेश्वर के वचन को जानने में आप नाकामयाब हो जाते हैं, तो we will not be able to be conformed to the image of Christ. और तब आप परमेश्वर के उस रूप में भी आप पूरी रीति से परिपक्व नहीं हो पाएंगे। Without proper knowledge of the person of God and the word of God, we can never accomplish God's will in our life. और अगर परमेश्वर के वचन की खासियत और प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से नहीं समझेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी तरह से लागू नहीं कर पाएंगे। Oh, my dear brothers and sisters, it is the desire of the Lord concerning each one of us that we should lead a victorious Christian life in this world. और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक उद्धार पाए व्यक्ति अपने जीवन में एक विजयी रूपी जिंदगी जी सके। I'm sure all of us are sending our children to school for studies. और जैसे हम सब अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं शिक्षा लेने के लिए, we don't want them to fail and then get passed on. और आप कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा फेल हो जाए, पराजित हो जाए और बाद में पास हो जाए। कोई माता पिता ये नहीं चाहेगा। We don't want them to study 2 or 3 years in a class and then promoted to the next class. और कोई माता पिता नहीं चाहेगा एक कक्षा में 3 बारी फेल हो जाए और फिर चौथे साल में वो पास हो जाए। We want them to be promoted to the next level of studies even in the very first year, and also we want them to score maximum marks according to their capacity. और वो हर एक माता पिता चाहेगा जब पहले साल में जब किसी बच्चे को डालते हैं उसी साल वो दूसरे कक्षा में प्रमोट हो जाए, पास हो जाए और पास भी बड़े अच्छे अंक लेकर, वो ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत अंक लेकर वो पास हो। Therefore we put them in the best possible school. और फिर आप कोशिश में रहेंगे कि उन्हें अपने बच्चों को बड़े अच्छे स्कूल में दाखिला दिया जाए।
We buy for them textbooks and guides. और उन्हें हर एक किताब पाठ्यक्रम के जो भी उनके सहायता है सीखने के लिए वो आप खरीद के देते हैं. We will see that they have good teachers and also we provide them good tuitions. और वो आप देखते हैं कि उनके जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, वो अच्छे हैं और साथ साथ उनको मदद करने के लिए आप अच्छे ट्यूशन भी लगाते हैं. And also we give all the favorable situation and all what is required for them to study well and score maximum marks. और हर एक माता पिता यही चाहेंगे कि उसके बच्चे हर रीति से हर सहूलियत प्रदान करके उनको अच्छी परवरिश और उनको अच्छी शिक्षा दी जाए. If they still fail, my dear brothers and sisters, how do you feel? What would be your feeling? अगर वो इतने सारी सहूलियतें देने के बाद, प्रदान करने के बाद फिर भी वो अपने कक्षा में फेल हो जाते हैं, तो मेरे प्रिय माता पिता भाई बहनों, आपको कितना बड़ा दुख होगा. Our God wants us to be victorious Christians in this world. हमारा परमेश्वर चाहता है कि उसके उद्धार पाए हुए लोग ये अपने जीवन में इस धरती पे एक विजयी रूपी जीवन वो जी सकें. Therefore, He has put us in the best class. Let me tell you, our church, Brethren Church, is the best church where we can know and study the better doctrines and also what Bible actually teaches. और हमारे ब्रेदरन चर्च में, ब्रेदरन कलीसिया में एक ऐसी अच्छी तालीम दी जाती है जहां हर एक व्यक्ति को अवसर मिलता है कि वो परमेश्वर के वचन की पूरी रीति से वो उसे सीख सके और अपने जीवन में वो शिक्षा को वैसे ही लागू करे जैसे सीखा जाता है. We have the Holy Spirit as our best teacher to teach us and lead us in godly things. और हमें पवित्र आत्मा हर समय उपलब्ध है कि यही वचन को हमें सिखाए और वही वचन पे चलने के लिए वो पवित्र आत्मा जो हमें अगुवाई करता है. And many a times God is giving us tuitions also. और कभी-कभी हमें परमेश्वर ट्यूशन भी लगाता है. And I'm happy that I'm also called for this tuition. We were having 3 days tuition now. और मुझे भी ट्यूशन के लिए बुलाया गया. 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन, आखिरी दिन ट्यूशन का. And God has given all good circumstances to live for Him and lead a victorious Christian life, my dear brothers and sisters. परमेश्वर ने हमें अलग-अलग रीति से, अलग-अलग बातों से हमें मदद मुहैया कराया है ताकि हम इस प्रकार के सहायता से वचन सीखकर इस धरती पे बहुत बड़े विजय रूपी जीवन जी सकें. And if you still fail, my dear brothers and sisters, can you imagine the heart of God, how sad and disappointed our God would be? इतने सारे सहूलियतें मिलने के बावजूद भी अगर आप पराजय हो जाते हैं तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमारा स्वर्गीय पिता बहुत दुखित हो जाएंगे, उनका हृदय टूट जाएगा. If we are not coming to the knowledge of truth, we will commit mistakes and we fail in our Christian life. अगर आप सत्य के ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे तो हम अपने जीवन में पराजय हो जाएंगे. The desire of God concerning each one of us is that we should be victorious in our Christian life. और यही परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक उद्धार पाए व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के सत्य के ज्ञान को समझकर आप एक जयवंत जीवन, एक विजयी रूपी जीवन जिए. May the Lord help us in this regard. परमेश्वर इस बातों में हमारी सहायता और मदद करें. Our question is, what will happen if we will not come to that knowledge of truth? हमारा सवाल ये है, प्रश्न ये कि अगर हम सत्य के ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे तो क्या होगा? Secondly, we see that we will not be sanctified. और दूसरी बात हम देखेंगे कि हम पवित्र नहीं बन पाएंगे. John's Gospel chapter 17 and verse 17. जिस प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 का 17 आयत देखेंगे, 17 अध्याय 17 आयत में क्या लिखा है? We know that chapter 17 is our Lord's high priestly prayer concerning each one of us. और ये जो
अध्याय है, ये वो महायाजक के बारे में, उसके बारे में ये पूरा लेख लिखा है। There the Lord says, sanctify them with thy truth, because thy word is truth. यहाँ लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। When we come to Ephesians chapter 5 and verse 26, और इफिसियों का 5:26 में लिखा है, there we read, it is told that he might sanctify her, that means the church, having cleansed her by the washing of water of the word. कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। It is the Lord who is sanctifying us. वो परमेश्वर है जो हमें पवित्र कर रहा है। We are sanctified by the word of God. और वो हमें परमेश्वर अपने वचन से पवित्र कर रहा है। Therefore, if we fail in the knowledge of the person of Lord Jesus Christ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बिना अगर आप पराजय हो जाते हैं, तो if you fail in understanding the truths of the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन के सत्य को ना समझ पा रहे हो, तो you will not be sanctified. आप पवित्र नहीं किए जाएंगे। God cannot sanctify you unless you know the person of Lord Jesus Christ and you know the word of God. आप जब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझते, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं प्राप्त करते, आप पवित्र नहीं किए जाएंगे। When we come to John's Gospel chapter 13 and verse 8, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13:8 आयत देखें। there we see the Lord Jesus Christ was washing the feet of his disciples. हम देखते हैं यीशु मसीह वहां चेले लोगों का पांव को धो रहे थे। And when he came to Peter, he said, "You shall never wash my feet." और जब पतरस के पास आया, तो पतरस ने कहा, तू मेरे पांव को कभी ना धोने पाए। And see the answer the Lord gave to him. आप देखो यीशु ने क्या उत्तर दिया। If I do not wash you, you have no part with me. यहाँ लिखा है, यदि मैं तुझे ना धोऊं, तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। We need to carefully read that phrase. हमें बहुत ध्यान से उस भाग को पढ़ना है। The Lord did not say that I have no part with you. परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मेरे तेरे साथ कोई साझा नहीं है। The Lord said, if I do not wash you, you have no part with me. और वहां ऐसे लिखा, अगर मैं तुझे ना दूं, तो तेरा मेरे साथ कुछ भी साझा नहीं है। Dear brothers and sisters, as believers, the Lord's part with us will never be broken, will never be lost. और मेरे अजीजों, ऐसे विश्वासी होते हुए हमारा और परमेश्वर का जो साथ है, जो साझा है, वो कभी भी नहीं खो पाएगा, कभी टूटेगा नहीं। Now it should be carefully explained. The Lord's part, the Lord's relationship with us will never be broken. परमेश्वर का जो हमारे साथ जो रिश्ता है, वो कभी टूटता नहीं है। And that's why our salvation is secure. इसीलिए हमारा उद्धार जो है वो सुरक्षित है। But our relationship with God will be broken. अब पर हमारा जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो टूट सकता है। That is our fellowship with the Lord. इसका मतलब हमारा परमेश्वर के साथ जो संगति है, our standing before the Lord will not be lost because our salvation is secure. क्योंकि हमारा जो उद्धार जो परमेश्वर के साथ है वो नहीं टूटेगा, वो वहां सदा काल तक है। But our fellowship with the Lord will be broken because that is based on our holiness, our sanctification. हमारा जो संगति परमेश्वर के साथ है वो टूट सकता है,
वो उस आधार पे टूटेगा अगर हमारे जीवन पवित्र नहीं है। Oh, when the Lord said, if I do not wash your feet, you have no part with me. और जैसे प्रभु ने कहा अगर मैं तुझे तेरा पाँव ना धोऊं तो तेरा मेरे साथ कोई साझा नहीं है। Then Peter said, okay, if that's the case, not only my feet, you give me a bath itself because I just want to have fellowship with you. और जब उसने ऐसे सोचा तो कहता मेरे पाँव कोई ना धो, मुझे पूरे सिर से लेके पाँव तो मुझे नहला दे। And the Lord said, the one who is already bathed do not need it again, but your feet need to be washed. और प्रभु ने कहा जिसका जो स्नान हो चुका है, जिसने स्नान लिया उसको सिर्फ पाँव ही धोने की आवश्यकता है। We have been washed by the blood of the Lord Jesus Christ once and for all. That need not be repeated. हमें हमारे जीवन को परमेश्वर ने अपने लहू से एक ही बार जब उद्धार धो डाला है और एक ही बार वो हो चुका, उसको बार बार धोने की जरूरत नहीं है। But our feet, as we live in this world, may get dirty. Sin may come into our life. There we need to be washed by the word of God. And that's what the Lord says here. और इसलिए हमारे पाँव जो हमेशा इस दुनिया पे चलते रहते हैं, पाप आने का संभावना हो जाता है, कीचड़ उछल जाता है, इसलिए हमारे पाँव को वो परमेश्वर के वचन के साथ धोने की बहुत जरूरत है। So if we do not understand the truth, if we do not know the person of the Lord, if we fail to understand the truth of the word of God, you will not be sanctified. अगर हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, परमेश्वर के सत्य वचन को नहीं समझेंगे, परमेश्वर के उस महान प्रेम को नहीं जानेंगे, तो हम कभी भी कदाचित भी पवित्र नहीं हो सकेंगे। Oh, my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, the Lord has shed his blood at the cross and washed us once for all to become children of God. और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू जो काल्वरी क्रूस पे बहा, उस लहू से हमें एक ही बारी हमेशा के लिए परमेश्वर ने धो डाला है। And he has kept us in this world for some time. और हमें धरती पे कुछ समय के लिए परमेश्वर ने रखा है। The purpose of leaving us in this world is to live for the Lord, to work for the Lord. और इस दुनिया में हमें रखने के पीछे मकसद है कि हम परमेश्वर के लिए जिएं और परमेश्वर के लिए चलें। And the purpose is that we would be able to receive rewards in heaven when we stand with him on that day. और परमेश्वर का मकसद ये है कि जब हम यहाँ जीने के बाद जब हम परमेश्वर के सम्मुख हम जब खड़े होंगे, उस न्यायाधीश के सामने हम परमेश्वर से हमारे इस धरती के जीवन के आधार पर हमें प्रतिफल प्राप्त होगा। It is for our benefit, dear one, that he has left us here in this world for some time. ये हमारे फायदे के लिए है कि परमेश्वर हमें यहाँ इस धरती पे कुछ समय के लिए छोड़कर वो परमेश्वर अपने पिता के पास है। But as we live in this world for a short period of time, और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब जितने उद्धार पाए हैं वो कुछ समय के लिए ही संसार में हैं। And he wants us to maintain his holiness in our life as long as we live in this world. और वो चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि हम उस पवित्रता को कायम करें जितना समय हमें परमेश्वर ने इस धरती पे रहने के लिए दिया है। If any time you fail, the Lord is ready to wash you, to sanctify you, and to restore you to his fellowship. और कभी भी कोई भी दिन अगर आप उस पवित्रता में जीने में असमर्थ हैं या पराजय हो जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमेशा तैयार है कि वो आपको उस पाप से वो धो के और पुनः उस संगति में और उस परमेश्वर के प्रेम में आप आ सकें। Our God is so gracious that he will never say, you have been away from me for a long time, you were not obeying me for a long time, so I don't want you now. और पर हमारा परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है कि वो आपके गलतियों को देख के ऐसा नहीं कहेगा कि तुम इतने साल तक मुझसे नाराज थे, मेरे कहने पे ना चला और मेरे कहने के विरुद्ध काम किया, इसलिए मैं तुम्हें त्याग दूंगा।
in spite of all our disobedience, in spite of all our backsliding, और जबकि हमारे जीवन में बहुत से बार हम अनाज्ञाकारी में जीते हैं और बहुत से बार हम परमेश्वर के वचन से पीछे मुड़ जाते हैं, our Heavenly Father, even today evening, calling you in love, my dear son, my dear daughter, come to me, cleansed and restore the fellowship with me. और आज हमारे वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर इस शाम के समय हमसे इस प्रकार प्रेम पूर्वक कहते हैं, जो पीछे हट गए हैं, जो अनाज्ञाकारी में चल रहे हैं, उनसे कहते हैं, मेरे बेटे, मेरे बेटी, मेरे पास वो अपने प्रेम के साथ, वो अपने वचन के साथ हमें शुद्ध करके पुनर्व संगति को जो प्रेम में है वो स्थापित करना चाहता है। Oh, my dear brothers and sisters, ओ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, will you take a moment to look to your life and see the area where you have failed and you lost the fellowship of the Lord? और आज ये शाम के समय थोड़े पल के लिए अपने जिंदगी को देखें और उस क्षेत्र में देखें जहां आप प्रभु से पीछे हटे हैं या आपने कोई ऐसी बात की है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, आज्ञाकारी है, तो आज थोड़ा समय उस क्षेत्र में आप ध्यान दें। He is ready to sanctify you even right now. आज इसी पल अगर आप उस बात को समझते हैं, वो आपको पवित्र करना चाहता है। Will you come to the feet of the Lord? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के उस पांव के नजदीक आएंगे? Will you admit that, Lord, I failed in this area of my life? उसके चरणों में आके आप इस बात को अंगीकार करेंगे, हाँ प्रभु जी, मैं इस क्षेत्र में मैं पराजय हो चुका हूँ, मैं हार चुके हूँ। क्या इस क्षेत्र में आप इस बात को मानने को तैयार हैं? My fellowship with you is broken in these areas, I know. और मैं जानता हूं प्रभु जी कि इस भाग में, इस क्षेत्र में आपके साथ मेरी संगति टूट चुकी है। Lord, pardon my sins, I come unto you. प्रभु जी, मेरे उस पापों को माफ कर, मैं आपके चरणों में आती हूँ। Cleanse me with thy word, which is truth, and restore me to your fellowship. और प्रभु जी, आपके वचन से मुझे शुद्ध कर, क्योंकि आपका वचन मुझे पवित्र करता है, इसलिए मैं उस बातों से आपके हुजूरी में आती हूँ। Give me back the joy of salvation. प्रभु जी, उस उद्धार का जो आनंद है, प्रभु जी, वो मुझे प्रदान कर। Oh, fill my heart with that first love towards the Lord. प्रभु जी, मेरे हृदय को वो पहला प्रेम से भर डाल। Will you come to the Lord even today evening? क्या आप इस शाम प्रभु के चरणों में आने के लिए तैयार हैं? May the Lord help you, dear ones. मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबों को सहायता और मदद करें। And the third failure we see is that we will not be able to enjoy freedom if we do not know the Lord, if we do not know the word of God. और हम स्वतंत्रता को अनुभव नहीं कर पाएंगे अगर हम परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के सत्य के ज्ञान को समझेंगे नहीं। In John's Gospel chapter 8 verse 32, in John's Gospel chapter 8 verse 32, यूहन्ना उसका 8 का 32 में हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 32 आयत में लिखा है, and the Lord said there, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. और उसमें ऐसे लिखा, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। When we know the Lord, when we know the truth, जब हम प्रभु को जानेंगे, जब हम सत्य को जानेंगे, we will be freed from the slavery of the besetting sins, my dear ones. और मेरे प्रियो, हम उस पाप के उस बंधन से हम आजाद हो जाएंगे। When we know the truth, जब हम उस सच्चाई को, सत्य को जानेंगे, when we'll be freed from the influence of Satan in our life, और वो शैतान के जो सारे चुंगल से, सारे प्रकार के बहकावे से हम स्वतंत्र हो जाएंगे। when we know the truth, और जब हम सत्य को जानेंगे तो we will be freed from the fascinations of this world and flesh.
और फिर हम इस संसार की अभिलाषाएं और ये शरीर की अभिलाषाओं से आजाद हो जाएंगे। When we know the truth, अगर हम सत्य को जानेंगे तो we will be freed from the cords of our tradition and the custom. और फिर हमारे जीवन में जो रीत रिवाज है जो हमारे पुरखाओं ने रखा उसमें से हम आजाद हो जाएंगे। When we know the truth, और जब हम सत्य को जानेंगे तो we will be freed from all superstitions and false beliefs. और फिर हर एक प्रकार के अंधविश्वास और हर प्रकार के काले इल्म से हम बच जाएंगे। When we know the truth, अगर हम सत्य को जानेंगे तो we will be freed from the bondage of all tensions and fears and cares for the future. और आप अपने जीवन में हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार का डर और भय जो हमारे भविष्य के जो बातों का चिंताओं से आप स्वतंत्र हो जाएंगे। Look to your own heart and your life. आप अपने जीवन में और अपने हृदयों को जरा देखें and see which are the areas that you are still under slavery. आप देखें कि मेरे हृदय में, मेरे मन में कौन से भाग में भी आज भी मैं उस बंधन में हूं, आज मैं उस दास्तव में हूं। And today, even now, the Lord is standing near you. और आज भी प्रभु आपके जिंदगी के नजदीक खड़ा है। He can make you free. वो आपको स्वतंत्र कर सकता है हर बातों से। Know him, know the truth of the word of God. उसे जाने और उसके परमेश्वर के सत्य वचन को जाने। Commit your life to the Lord. अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख समर्पण करें। And he will make you free from the slavery of all these things, and you will be able to lead a victorious Christian life. और वो आपको हर एक जिंदगी के हर एक भाग में जिस बंधन में हम हैं, दास्तव में, उस सारी बातों से परमेश्वर में आजाद करेगा और आप आजाद होकर एक विजयी रूपी जीवन आप जी सकेंगे। May the Lord help us. परमेश्वर हम सबों को इस बातों के लिए सहायता मदद करे। We will move on to the next question. और हम आगे को अगला पांचवा को सवाल में जाएंगे। And the fifth question is, और पांचवा सवाल ये है, what are the hindrances for coming to the knowledge of truth? और सत्य के ज्ञान के पास आने के लिए रोकने वाली बातें क्या है? I will show you 3 instances where disciples were not able to recognize our Lord. और मैं 3 बातें आपके सामने बताना चाहूंगा कि जैसे कि चेले लोग हैं वो प्रभु को समझ नहीं पा रहे थे। We have not time to read the whole passages. हम सारे आयतें हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। Those instances are very familiar to us. और ये जो भी घटनाएं घटी हैं ये हम सब जानते हैं बाइबल में। First of all, we look to Luke's Gospel chapter 24. सबसे पहले लूका उसका 24 अध्याय को देखेंगे। There we have the record of 2 disciples journeying from Jerusalem to Emmaus. और हम देखते हैं वहां 2 चेले लोगों को देखते हैं जो एमोस से जा रहे थे यरूशलेम की ओर। No, from Jerusalem to Emmaus. यरूशलेम से एमोस को जा रहे थे। And in verse 16 of chapter 24, और 24 का 16वें आयत में लिखा है,
There it is mentioned that the eyes were restrained, so they could not recognize Jesus, even though he was walking along with them. और वहां लिखा है परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी थी कि वह उसे पहचान ना सके, क्योंकि प्रभु उनके साथ साथ चल रहा था. And they were discussing various things between them. और वो आपस में दोनों चेले आपस में कई विषय के बारे में वो बातचीत कर रहे थे. They were not able to believe the resurrection of the Lord. वो इस बात को विश्वास करने में विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान हुआ है. When we come to verse 25 of chapter 24, और 24 के जब 25 में आते हैं, there we see the Lord rebuking them. और हम वहां देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उन्हें डांट रहे हैं. He says, "Oh foolish ones, and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken." और वहां वो कह रहे, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों कहा है. Yes, they were slow in believing what the prophets were said. और जो भी भविष्यवाणी के उस बातों को विश्वास करने में वो बहुत धीरे थे. You know, in our Malayalam language, we use a phrase when people are slow to understand things. और मलयालम में एक ऐसा एक वाक्य बोलते हैं कि हम कोई ऐसे व्यक्ति है वो विश्वास करने में बहुत धीमा है. So we say them as tube light. और हम उनको कहते हैं ये ट्यूब लाइट है. Now we say he is a tube light. हम कहते हैं अरे ये ट्यूब लाइट है, ये धीरे से जलेगा. So, I don't want to explain because so आपने पहले कहा दिया. Okay, they are slow in understanding. हाँ, वो धीरे समझने में बहुत धीमा है वो लोग. So the Lord was telling that you are tube lights, you are not understanding properly. और प्रभु अपने चेलों के बोले तुम ट्यूब लाइट हो, तुमने अभी तक विश्वास नहीं किया, बहुत धीरे से विश्वास कर रहे हो. Later we see that the Lord opened their eyes that they were able to recognize the Lord. फिर हम देखते हैं बाद में परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोल दिया और वो देखने लगे, समझ गए. Let me ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. What restrained them from knowing Christ or recognizing Christ? कौन सी बात है जो परमेश्वर को, प्रभु को पहचानने में उन्होंने देरी की? कौन सी ऐसी बात है देरी करने वाली, कौन सी बात है? Now sometimes I hear people telling that Jesus had restrained their eyes. Jesus did not allow them to understand him. और कई लोग कहते हैं प्रभु ने उनकी आंखें बंद किया होगा इसलिए ताकि वो प्रभु को पहचाने ना. I don't think so. मैं ऐसी बात नहीं समझ रहा. I believe their doubt about the scriptures, their unbelief about the resurrection of the Lord made their eyes blind that they could not recognize the Lord. मैं ये विश्वास करता हूँ क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं किया, उन्होंने प्रभु के पुनरुत्थान पे विश्वास नहीं किया, शक किया, इसलिए ये शक और अविश्वास ने उनकी आंखों को बंद कर दिया है. So we can see here, if we do not believe in the person of the Lord Jesus Christ, if we do not believe the word of God, then we will not be able to understand the truth. और अगर हम प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे, अगर प्रभु के वचन पर हम विश्वास नहीं करेंगे, तब हम कभी भी सत्य को नहीं जानेंगे. Which means our doubts, our unbelief will hinder us from knowing the truth. और इसका मतलब है हमारा अविश्वास और हमारा जो शक है जो परमेश्वर के वचन पर है, उसके जरिए ही हम परमेश्वर के उस सत्य को नहीं समझ पाएंगे. Oh my dear brothers and sisters, those who are listening to me, is there anybody who doubt God, who doubt the authenticity of the word of God? और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कोई भी अगर परमेश्वर के उसके पुत्र पर और उसके वचन पर जो सिद्ध है उस वचन पर कोई शक करता है तो
you will never be able to come to the knowledge of truth. वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के सत्य के ज्ञान के नजदीक नहीं आ पाएगा। We will go to the second instance. और फिर हम दूसरे घटना में जाएंगे। That is recorded in Matthew's Gospel, chapter 14, verses 24 to 26. मैथ्यू उसका 14 का 24 से 26 तक देखेंगे। There we see that the disciples were crossing the Sea of Galilee. और हम वहां देखते कि जो चेले लोग थे वो गलीली जो समुद्र को पार कर रहे थे। Jesus was not there with them. यीशु मसीह उनके साथ नहीं थे। There was a heavy storm and their boat was tossed up and down on the waves. और हम देखते वहां बहुत से आंधी और तूफान आया और उनकी जो किश्ती है वो इधर उधर डोल रही थी। They were really afraid of their life. और वे अपने जीवन को लेके बहुत से भयभीत हो गए थे। They thought they are finished then and there. और उन्होंने सोचा कि उनकी जिंदगी वहां ही समाप्त हो रही है। But there we see at the fourth watch, Jesus came to him walking over the sea. और हम देखते हैं वहां प्रभु यीशु मसीह उनके नजदीक आते हैं। When Jesus was approaching them, जब जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह पानी पे चलते उनके नजदीक आते आ गए, we see in verse 26, they said it is a ghost. और जब हम देखते हैं 26 आयत में वे घबरा गए और वो कहने लगे कि ये तो भूत है। Oh, their master, their loving master in his care and love, walking over the sea, approaching them to help them out. और जब वो अब देखते हैं उनको देखने वाला, उनका अच्छा चरवाहा और उनका शिक्षा देने वाला उनका जो स्वामी है, जब वो खुद वो उनको मदद करने के लिए जब वो आ रहे थे, उन्होंने उन्हें नहीं पहचाना। Oh, they say that a ghost is coming. और उन्होंने कैसे पहचान, वो कह रहे कि ये भूत आ रहा है। No, normally we say a phrase in between ghost and sea. और हम देखते हैं कि एक ऐसा फ्रेज है, एक ऐसा भूत और वो झील में आ रहा है। Now we have a saying, being in between ghost and the sea. और एक ऐसा कहावत है, हम तो फंस गए झील में और ये भूत के बीच में। And the disciples were like that now. और ऐसे ही है वो चेले लोग अब। They were not able to identify their master. क्योंकि वे अपने स्वामी को पहचान नहीं पा रहे थे। You know why they were not able to identify the Lord? क्यों, ये क्या कारण था कि वो अपने स्वामी को नहीं पहचान पाए? They were gripped with fear so much that they were not able to identify the Lord. वो इसलिए वो पहचान नहीं पा रहे क्योंकि वो पूर्ण रीत से भयभीत थे, भयभीत के उस जाल में वो फंसे हुए थे। If you are filled with fear, you will never be able to recognize the Lord or the truth of the word of God. अगर आप भय में जकड़े हुए हैं तो आप कभी भी अपने प्रभु को आप पहचान नहीं पाएंगे। There will be a lot of problems, there will be a lot of uncertainties when we follow the Lord. और जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर में चलते हैं, तो आपके जीवन में बहुत से कठिनाइयां, बहुत से परेशानियों में आप घिरे होंगे। The Lord did not promise a rose bed for us, those who follow the Lord. और परमेश्वर ने हमें ऐसा कोई वायदा नहीं दिया कि जो आप चलोगे प्रभु के पीछे। No, He has not promised any rose bed, any comfort as we live in this world. और परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा कि मेरे पीछे चलने से तुम्हें बहुत सारा आराम होगा, इस प्रकार का वायदा नहीं किया। He said you will have tribulation in this world. परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने कहा आपको इस दुनिया में बहुत सी विपत्तियां आएंगी। Then what is the benefit? और फिर फायदा क्या है प्रभु के पीछे चलने के लिए? The Lord said, I will be with you. और फायदा ये कि मैं तुम्हारे संग इस दुनिया के अंत तक रहूंगा। In Psalm 23 we read about the good shepherd. और हम भजन 23 में हम एक अच्छे चरवाहे के बारे में पढ़ते हैं।
And it is told that even though I walk in the valley of shadow of death, I fear no evil, because thou art with me, and thy rod and staff, they comfort me. और वहां लिखा है कि अगर मैं घोर मौत की तराई में से भी होकर जाऊं तब भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि तुम मेरे हाथ में है और तू अपने सोटे से मुझे आराम देता है। Oh, my dear brothers and sisters, even though we have the Lord as our shepherd, he may be made to walk through the valley of shadow of death. और मेरे प्रिय, जबकि हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है जो अच्छा चरवा है, यानी कि हम उस मौत की तराई में होके भी हम जाएंगे तो भी प्रभु हमें सांत्वना देने के लिए हमारे साथ है। We need not have to be afraid of, because his unfailing presence will always be there. और हमें किसी बात की घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी उपस्थिति जो कभी भी गायब नहीं होती, वो हमेशा हमारे साथ रहती है। Even in the valley of shadow of death, where nobody can accompany you, there the Lord's presence will be there. और जबकि हम उस मौत की तराई में होके जाते, कोई और हमारे साथ नहीं होता, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के वायदे के अनुसार हमारे साथ, हमारे संग रहता है। But we are afraid of following the Lord. If you have fear of this life, then you will never come to the knowledge of truth. अगर आप इस धरती पे इस मसीह जीवन में अब आगे जाते हैं और उसमें के बावजूद आप डर से भरे हैं, तब आप कभी भी परमेश्वर को सत्य के ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। We will go to the third instance. हम तीसरे भाग में जाएंगे। John's Gospel chapter 21 verse 3 to 5. मरकुस, No, John 21 3 to 5. जॉन गॉस्पेल 21 verses 3 to 5. 3 से 5 तक, यूहन्ना 21 3 से 5 तक हम देखेंगे। There we see, after the resurrection of the Lord, disciples have gone back to their previous profession, fishing. हम देखते हैं यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो चेले थे वो अपने पुराने व्यवसाय में फिर मुड़ गए थे। And there we read that they toiled for the whole night, but they could not catch even a single fish. वो पूरी रात वो मेहनत किया और देखते उन्होंने एक भी मछली पूरी रात मेहनत करके नहीं पकड़ पाए। Early in the morning we see that the Lord stood there at the shore. और हम देखते हैं कि वो भोर को सुबह वो नजदीक खड़े हैं और वहां उन्हें देख रहे थे। But they were not able to recognize the Jesus. पर वे चेले यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। He asked him, children, do you have anything to eat? और उन्होंने उनसे पूछा कि बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? They did not understand him. They did not recognize him. और उन्होंने उनके पास नहीं था, उत्तर नहीं दिए पाए। Well, later the Lord said to cast the net again, and there was a miraculous catch. They could understand it was Jesus. और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस तरफ जाल डालो, और उसके बाद बहुत बड़ा रीति से उन्होंने मछली को पकड़ा। फिर उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना। Let me ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। How come that they could not recognize Jesus? कैसे वो प्रभु यीशु मसीह को उस समय नहीं पहचान पाए? Oh, they were unduly involved in their material needs, earthly gain, so they could not recognize Jesus. क्योंकि वो लोग अपने दुनियादारी के व्यवसाय में इतने डूबे हुए थे, इतने मशगूल थे, जबकि यीशु उनके पास आकर किनारे में खड़े होने के बावजूद उसके कारण वो नहीं पहचान पाए। If you have the priority to have material things in this world, you will never be able to identify Jesus or recognize Jesus in your life. अगर आप इस धरती पे रहते हुए आप धरती की चीजों पर आप मन लगाते और उसको ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, ऐसे बुरे वलीन होके जब जीते हैं, तो आप कभी प्रभु को नहीं पहचान पाएंगे। If earthly things is your main concern, then you will never come to the knowledge of truth.
अगर इस दुनियादारी की चीजें, दुनियादारी के सारी बातें आपके जीवन का सबसे पहला लक्ष्य है या महत्वपूर्ण लक्ष्य समझते, तो फिर अभी कदापि परमेश्वर के सत्य के ज्ञान के वचन को नहीं समझ पाएंगे। Oh, my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, we were dead in sins and trespasses. हम पाप में हम मरे हुए थे और उस अनर्थकार के जीवन में जी रहे थे। The Lord has quickened us by his death at the cross of Calvary. और परमेश्वर ने एक फैसला लिया और अपने बेटे को कालवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। He has quickened us by his death at the cross. और उसने हमें कालवरी क्रूस पे के साथ जरिया हमारा रिश्ता जोड़ा। Not only that, we are made to sit in heavenly places along with Christ Jesus. और यही नहीं, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठने का सौभाग्य दिया। And as we continue in this world, और जब हम इस धरती पे अपने जीवन को गुजारते हैं, in Colossians chapter 3 we read, कुलुस्सियों के 3 में हम पढ़ते हैं, put your affection on things which are from above. और कहते हैं कि स्वर्गीय बातों के और मन लगाओ। You are positionally seated in heavenly places today. क्योंकि आज के इस वर्तमान समय में आपका जो पदवी है वो स्वर्गीय स्थानों के में है। But for a time period you are allowed to stay back upon this earth. और इसलिए कुछ समय के लिए ही आपको इस संसार में रखा गया है। But you don't belong to this world. पर आप इस संसार के नहीं हो। Your citizenship is in heaven. क्योंकि आपका जो सिटीजनशिप है वो आपके स्वर्ग का है। Set your mind on things which are in heaven. और इसीलिए लिखे अपने मन को आप स्वर्गीय वस्तुओं के ओर ध्यान करें। Let the heavenly things be our priority, my dear brothers and sisters, as we live in this world. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब आप इस संसार में रहते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, उस समय हमारा मन उस स्वर्गीय बातों पर हमें लगाना। Let us have the affection set on things which are in heaven. क्योंकि भविष्य के समय में हमारा जो लगाव है वो स्वर्गीय स्थानों, स्वर्गीय बातों में हो। If we fail in that, अगर हम इसमें पराजय हो जाते हैं, you will fail to identify Jesus, recognize Jesus in your life. इसलिए तब हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानने में नाकामयाब हो जाते हैं हमारे जीवन में। So if we fail to understand Jesus in our life, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में हम पराजित हो जाते हैं, if we fail to know the truth of the scriptures, अगर हम परमेश्वर के वचन के सत्य को समझने में हम नाकामयाब हो जाते हैं, we will be losers with regard to spiritual things. और फिर हम आत्मिक बातों में हम हार जाएंगे। Let me conclude here. मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। We look to the consequences of not coming to the knowledge of truth. हम यहाँ देख रहे थे कि कौन सी बातें हैं जो हमें परमेश्वर के सत्य के ज्ञान में न समझने के लिए रुकावट होती है। If we do not come to the knowledge of truth, अगर हम परमेश्वर के सत्य वचन के ज्ञान में नहीं आते, our life on earth will remain a failure. हमारे जो इस धरती का जीवन है ये पराजय से भरा हुआ जीवन होगा। If we fail to come to the knowledge of truth, अगर हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान में समझने के लिए हम नाकामयाब होंगे, तो we will not be sanctified and we will have no part with the Lord. Our fellowship with the Lord will be broken. और हम पवित्र नहीं हो पाएंगे, ना ही हम परमेश्वर के साथ संगति कर पाएंगे। If we do not come to the knowledge of truth, और अगर हम परमेश्वर के सत्य ज्ञान को ना समझ पाए, we will not be able to enjoy the true freedom from sin, Satan, and this world. और फिर हम हमारे जीवन में जो स्वतंत्रता है और शैतान और उसके कामों से और हर प्रकार के भय से
वो हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। Also, we look to the hindrances of coming to the knowledge of truth. और फिर हमने देखा कि सत्य वचन के समझने के लिए जो रुकावटें पैदा होती हैं वो कौन सी हैं। If we doubt the person of Lord Jesus Christ, if we doubt the teaching of the word of God, we will not come to the knowledge of truth. अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर शक करते हैं और वचन को, सत्य वचन को शक करते हैं, नहीं समझते, यही बातें हैं जो हम सत्य वचन को समझने में रुकावटें पैदा करती हैं। If we have fear of this life and things of this world, then we will not be able to come to the knowledge of truth. और अगर हमारे बीच में, हमारे हृदय में भय है, ये जिंदगी का भय और भविष्य के भय है, ये रखते हुए अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये बातें हमें सत्य वचन के ज्ञान को समझने के लिए रुकावट पैदा करेगी। If our priority is earthly things, if we have set affection on things on this earth, we will not be able to come to the knowledge of truth. अगर हमारे मन संसारिक हैं, ये संसारिक वस्तुओं में हमारा मन है, अगर हमारे जीवन में ये संसारिक की चीजों का पहला महत्व है, तो वही हमें रोकेगा कि सत्य वचन के ज्ञान को ना समझ पाएंगे। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, I'm sure the Lord has been speaking to you very personally. और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्तित्व के जरिए व्यक्ति से व्यक्तिगत रीति में बात की होगी। We are human beings. We have our own pitfalls and failures. हम सब इंसान हैं, हर एक को अपनी अपनी जिंदगी की कमजोरियां और जिंदगी की हर एक परेशानियां हैं। We fail a lot in our day-to-day living. और हम हमारे रोजमर्रा के जीवन में कई जिंदगी के क्षेत्रों में हम पराजय हो जाते हैं। God who loved us, even crushing his dear son at the cross of Calvary. और परमेश्वर हमें प्यार करता है और अपने बेटे को काल्वरी क्रूस पर मरने के लिए छोड़ दिया। And that very God is a compassionate God. और वही परमेश्वर एक दयालु, दया से भरा हुआ एक परमेश्वर है। And even this evening, if you return to the Lord, आज इस शाम के समय अगर आप परमेश्वर के पास मुड़कर वापस आते हैं, acknowledging the Lord, that Lord, I have failed the Lord in my life. और इस बात का अंगीकार करें, प्रभु से कहें, प्रभु जी मैं अपने जिंदगी के कई क्षेत्रों में मैं पराजय हो चुका हूँ। Lord, pardon my sins. प्रभु जी मेरे पापों को माफ करें। Forgive my failures and sins. मेरे जितने भी कमी कटियां और कमजोरियां और पाप है वो सब प्रभु जी आप माफ करें। Lord, I really want to come to the knowledge of truth. प्रभु जी मैं उस सत्य के ज्ञान के मैं समझने के लिए उसके पास आना चाहता हूँ। I want to lead a victorious Christian life. मैं एक विजयी रूपी जीवन जीना चाहता हूँ। And I really want to hear that words of appreciation. Well done, good and faithful servant. और मैं वो वाक्य सुनना चाहता हूँ, ए मेरे विश्वास योग्य और अच्छे दास। Oh, help me, Lord, even this evening. और ये बात कौन कह सकता है इस शाम को? God is waiting for you. परमेश्वर आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। Come to the knowledge of truth. उस सत्य के ज्ञान के पास आए। That is life abundant. और वो है बहुतायत की जिंदगी। And that is the victorious Christian living in this world. और वो है इस धरती पे एक विजयी मसीही जीवन। Opportunity is available for you. आपके पास ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। Decision is yours. और ये बहुत महत्वपूर्ण है। If you take a right decision right now, the Lord will honor you.
अगर आज इस पल इस शाम को आप एक फैसला लेते हैं, वो सही फैसला होगा और परमेश्वर आपके फैसले को आदर करेगा। Who want to commit his or her life to the Lord right now? कौन है आज मुझे सुनने वाले परमेश्वर के सम्मुख अपना जीवन को पूर्ण समर्पण करना चाहते हैं? May the Lord bless each one of us with these words. परमेश्वर आप सबों को इस वचन के साथ आशीषित करे। Thank you once again for giving me this opportunity to spend 3 days with you and to minister the word with you. धन्यवाद करते हैं कलीसिया का, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि 3 दिन वचन की सेवकाई करने के लिए। May the Lord bless each one of us, even the assemblies over there. May his name be glorified. और परमेश्वर हर एक को सहायता मदद करे, और खासकर महिलपुर असेंबली जो वहाँ है, उस असेंबली को भी परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर इन बातों से सारा आदर महिमा प्रभु को दे। May his name be glorified. उसके नाम की महिमा हो।